amino acid, stereochemistry, and numericals on specific rotation. So, students, today this is my topic and it is about proteins. As you know that proteins are polymers of simple units known as amino acids. I have given my lectures on amino acids and you are very uh, much know about amino acids. So amino acids show stereochemistry and we need to solve numericals on specific rotation, and I have covered these two things in my today's topic. Amino acids are not only protein building blocks, but they act as precursors for certain things, certain other compounds also, which are important, uh, which have important function in our body, like serotonin is made from tryptophan, catecholamine, dopamine, epinephrine, and norepinephrine are made from tyrosine, uh, and its precursor phenylalanine. Porphyrin, such as heme for glycine, is made from glycine. Nitric oxide is made from arginine. Polyamine and ornithine and uh, uh, polyamines are made from ornithine and S-adenosyl methionine. Nucleotides are made from aspartate, glycine, and glutamine, and various phenyl propanoids are made from phenylalanine. So, amino acids have various roles other than making proteins. uh, I'm not going into details of functions of serotonin or different compounds which are made from amino acids, or amino acids act as precursor for them, because today's topic is different, but for information I am giving uh, this this thing that they have varied functions. Now, general anatomy of amino acids. So we know that amino acids contain one carboxylic group and one amino group as their functional groups, and this is the general structure. And here this R group is present, and this R group varies from one amino acid to other amino acid. That's how all amino acids are different from one another. Uh, but this carboxylic group and amino group are always present in amino acids, all 20 amino acids, and 20 amino acids are known as magic 20 also, because only these 20 amino acids make proteins. Next is the topic of stereoisomerism. We already know what is isomerism, and isomerism is divided into two categories: structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism is exhibited in two forms. One is geometrical isomerism and optical isomerism. Again, I am not going into details of isomerism, but we are going to see what is stereoisomerism and how it is shown in amino acids. So, one form of stereoisomerism is cis-trans isomerism. You can see that fumaric acid is written here. These two carbons are joined together with double bonds, and they have same functional groups both side, but they are trans to each other. Like one is on the right hand side, and on the other carbon it is on the left hand side. This type of arrangement of atoms or functional groups are known as trans arrangement, and this formula depicts the mm, acid which is known as fumaric acid. Uh, if these two functional groups, carboxylic groups, are
on the same side, right side, and these two carbons are joined together with the double bond, then this acid is known as malic acid, and this type of arrangement is known as cis isomerism. And here it is peculiar that this arrangement cannot be reversed or shifted without breaking the double bond. These are not free to move from here to here, and this is not also free to move from here to here. So this is a fixed structure, and this is also a fixed configuration in which without breaking a double bond this cannot be changed into any other structure. Now I wish to show you in slideshow. So optical isomerism. Optical isomerism is important because it is present in proteins and amino acids. Optical isomerism is commonly found when a molecule contains one or more chiral or asymmetric carbon atoms. In Greek, chair और hand, chiral का मतलब हाथ है या chair कहते हैं उसे, और this is that carbon is also known as asymmetric carbon atom. So asymmetry क्या है ये अभी हम देखते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है उसके डिटेल्स में हम जा रहे हैं. Now if this is the molecule, then you can see that this symmetry plane hai, which is bisecting the molecule. This is a compound written here, and this is the symmetry plane. और अगर यहाँ से हम देखें जो कि दो मॉलिक्यूल्स को हाफ में डिवाइड कर रहा है तो क्या है, दिस इज द पॉइंट और एसिमेट्रिक सेंटर, जो कि हम अभी कार्बन के बारे में कह रहे थे कि दिस कैन बी एसिमेट्रिक कार्बन एटम. अब इसमें राइट हाफ इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हाफ. आप देख सकते हैं ये एटम और ये एटम आपस में एक से नहीं है, और ये भी एक से नहीं है. मतलब कार्बन ऐसा है जिससे अटैच्ड उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से जुड़ी हुई हैं. इन दैट केस ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया. इसके अराउंड भी अगर हाफ कर दे तब भी वो आपस में दोनों हाफ एक से नहीं है, और चारों वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड हैं. When the symmetry plane bisects the molecule, its right and left halves are dissimilar. Therefore, it is chiral and it should have two optical isomers. अब ये ऐसा है तो इसके दो आइसोमर्स पाए जाएंगे, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एसिमेट्री क्या होती है. अगर इसको कार्बन मानते हैं तो इससे अटैच सारी वैलेंसीज डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड है, और उसको हाफ करने पे राइट साइड इज नॉट इक्विवेलेंट, और बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर डिसिमिलर. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती है. वो कैसे बनती है ये देखिए. ये अभी हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा था, एनाटॉमी देखी थी अमीनो एसिड की. उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है, और अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह की होगी. HOOCC अमीनो ग्रुप, ये NH2 NH2 H2 should be here, and R H. तो ये इसकी मिरर इमेज बना रहा है. अब ये मिरर इमेजेस ये हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, माने कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर आ जाएगा, R के ऊपर आ जाएगा. तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस कहलाएंगी, जो कि पूरी तरीके से एक दूसरे पे
फिट नहीं बैठती, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, वो एक सी नहीं होंगी। इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस कहते हैं। और अगर ये कंपाउंड है और एसिमेट्रिक कार्बन कैरी करता है तो ये आपस में एनेंशियोमर्स या मिरर इमेजेस कहलाती हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ये आपको फिर से हम वही दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H है, CH3 है, NH2 है, ये मिरर इमेजेस हैं। इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी S enantiomer and this is minus levorotatory R enantiomer। अब enantiomer मैंने क्या बताया था, जबकि एक कंपाउंड की मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर टोटली फिट नहीं होती। अगर वैसी की वैसी उठा दें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, इसलिए वो एनेंशियोमर्स कहलाती है। अब इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल अगर राइट साइड में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। उसको डिनोट करते हैं प्लस साइन से। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड में रोटेट करता है देन दैट इज लीवो रोटेटरी, और माइनस साइन से उसको शो किया जाता है। और ये सिस्टम ज्यादा यूज में आता है, दैट इज व्हाई जनरली वी नो दैट इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और एल और डी एलानिन अगेन वो और एक अलग एक्सप्लेनेशन है जो कि आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कहते हैं, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस साइन से डिनोट करते हैं और लीवो रोटेटरी नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज एल एलानिन एंड डी एलानिन? अगेन हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंपाउंड को लिखने का तरीका है, दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शंस। एंड फिशर प्रोजेक्शंस क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डी एंड एल आइसोमर्स क्या है। तो फिशर प्रोजेक्शन आर बेस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। यहाँ पे हम आपको कंपैरेटिव अकाउंट दिखा रहे हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। दे रिप्रेजेंट structural forms that allow one to convey valuable stereochemical information by drawing 3D molecule as flat structure. An advantage of such a structure is that they can easily present multiple stereo centers and allow easy identification of planes of symmetry. Now इसमें क्या है, स्टीरियो सेंटर्स कौन से हुए? एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स अगर एक से ज्यादा है। इससे पहले अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कि सिंगल कार्बन एटम दिखाया गया था, तो वो सिंगल पॉइंट था एसिमेट्रिक कार्बन का। लेकिन जब स्ट्रक्चर्स में कई कार्बन है और कई कार्बन्स पे उनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स से सेटिस्फाइड है, तो एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं जिनका डिपिक्शन फिशर्स प्रोजेक्शन से दिखाया जा सकता है ज्यादा आसानी से। Fisher projections are useful in depicting monosaccharides and amino acids because they have many stereo centers or carbon with unique bonds. The different monosaccharides are all quite similar except that they differ about the orientation of stereo centers. Crossed lines are used to represent chiral, carbon, hydrogen, hydroxyl and amino groups. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज और एलानिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
और एक अमीनो एसिड है और दूसरा शुगर है। मगर इसमें क्या है कि ये पॉइंट्स दिखा रहे हैं ये कार्बन एटम्स हैं और इनसे जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ये आपका पेपर पे लिखने का तरीका है फिशर प्रोजेक्शन, और 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या खास दिख रहा है कि ये कायरल सेंटर्स हैं, चाइरल सेंटर्स है। ये सी जो है देखिए आप, ये COH से जुड़ा हुआ है, H से जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है और अगेन दूसरे C से जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही। तो इतने नंबर ऑफ asymmetric carbon atoms or chiral centers are present in one molecule which can be shown easily by Fisher प्रोजेक्शन, और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए और जो एटम्स है उनको यहाँ पे दिखाया जा सकता है। सिमिलरली अमीनो एसिड में ये चाइरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन है, और इससे जुड़ी हुई आप देख सकते हैं अमीनो ग्रुप, CH3 ग्रुप, H ग्रुप और COH, चारों डिफरेंट है इसलिए ये एसिमेट्रिक है। यहाँ पे अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएं तो दोनों हाफ्स जो है वो अलग अलग और डिसिमिलर होंगे ना। यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है जो कि लास्ट बट वन है, इसको पेनल्टीमेट कार्बन एटम कहते हैं, और इसके अराउंड किस तरह का अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप्स का, ये देखिए। यहाँ पे H है और OH लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में H है, देन इट इज L आइसोमर। व्हेन से मॉलिक्यूल में OH इधर है पेनल्टीमेट कार्बन एटम पे, तो ये राइट साइड पे OH है और ये H इधर चला गया लेफ्ट में, देन इट इज डी ग्लूकोज। अभी हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी के प्लस माइनस डिनोशन था, डिनोट करते थे, और डी और एल का एक्सप्रेशन देने के लिए हमने ये फिशर प्रोजेक्शन देखा। तो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो इस पेनल्टीमेट कार्बन एटम के अराउंड इन एटम्स का अरेंजमेंट है। नाउ इन अमीनो एसिड्स, व्हेन amino group is at the right side, it is D-alanine, and when amino group is at the left side, this is L-alanine. तो अभी हम देखेंगे कि all natural amino acids means 19 amino acids exist in L conformation, and the 20th amino is proline, which is इम्यूनो एसिड, जो कि हम पहले बता चुके हैं इम्यूनो एसिड है, उसमें जो NH3 ग्रुप है और CO ग्रुप है वो उसको वो ये जो उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो रिंग स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, इसलिए वो अमीनो एसिड ना होके इम्यूनो एसिड है। और रेस्ट जो 19 अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं वो सारे L अमीनो एसिड्स होते हैं। फिशर प्रोजेक्शन रूल्स भी पढ़ लेते हैं जब फॉर्मूला लिखने का तरीका पढ़ रहे हैं। तो द फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वर्किंग विद फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन may be rotated by 180 degrees without changing its meaning. Fisher projection may not be rotated by 90 degrees. Such a rotation typically changes the configuration to the enantiomer. To find the enantiomer of a molecule drawn as Fisher projection, exchange the right and left horizontal bonds. ये अभी मैंने बताया कि पेनल्टीमेट कार्बन एटम कौन सा कहलाएगा, लास्ट बट वन। अगर ऊपर से हम आपको फिर से दिखाएं, हम काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, नंबर 1 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट बट वन ये पेनल्टीमेट कार्बन एटम है, इसके अराउंड जो अरेंजमेंट है उससे डी और कैपिटल एल फॉर्म्स का की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वही एक्सचेंज करने से डी और एल फॉर्म के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसका मगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने का कोई संबंध नहीं है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है
उसका उसका स्मॉल डी से डिनोशन होता है, कैपिटल डी से नहीं। कैपिटल डी सिर्फ अरेंजमेंट है एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स का। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। लीवो रोटेशन और डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने की प्रॉपर्टी है, वाइल कैपिटल डी और कैपिटल एल जो शो करते हैं वो पेनल्टीमेट कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप्स का अरेंजमेंट है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल आपस में अलग हैं। अगेन हम इसको फिर से देख रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन सिर्फ एक अमाइनो एसिड का नहीं, दूसरों का भी देख रहे हैं। एलानीन, एल एलानीन, वैलीन, वैलीन है, एल वैलीन है, एल सिस्टाइन है, एल ल्यूसीन है, एल आइसोल्यूसीन है। ये नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं ना। ये जो भी ये डी एंड एल का अरेंजमेंट है मैंने ग्लूकोज से दिखाया था। एक्चुअली जो स्टार्टिंग शुगर मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन सीरीज से शुरू होता है, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे ये 3 से पहले वाला कार्बन इज पेनल्टीमेट कार्बन एटम, उसके अराउंड H एंड OH है। अब ये चूंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए दिस इज नोन एज एल ग्लिसराइड एंड दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और रोटेशन जो कि एल से डिपिक्ट नहीं हो रहा है, एल से कोई मतलब नहीं है, बट इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए इसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं। इसकी मिरर इमेज है ये, और यहाँ पे OH राइट की ओर चला गया है, that is why it is depicted by D, and by chance it is rotating plane of polarized light towards right, that is why it is depicted by plus. And these two are enantiomers because they are non superimposable images, mirror images, and these are optical isomers. All compounds having an arrangement of atoms similar to that at the stereo center of plus glyceraldehyde at a comparable carbon atom are members to D family. अब जो भी हम डी ग्लूकोज बना रहे हैं, एल एलानीन बना रहे हैं, उन सबको इससे कंपेयर किया जाता है, तब वो डिसाइड होता है कि एल ग्लिसराइड एल कॉन्फ़िगरेशन है या डी कॉन्फ़िगरेशन है। Those with opposite configuration at the same carbon are members of L family. Now, ग्लिसरल्डिहाइड को कंपेयर कैसे किया जाता है वो दिखाया गया। अमाइनो एसिड से कंपैरिजन कैसे करेंगे। CHO है शुगर में और कार्बोहाइड्रेट में, तो ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो COH हो जाएगा। दिस OH is converted to halide then to amine with ammonia, तो वो NH3 में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये कंपैरिजन पॉसिबल है। और अगेन दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये एल एलानीन होगा। अब एल एलानीन में दिस इज एल अमाइनो एसिड, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे तो वो डी एलानीन हो जाएगा। और ये दिस इज डी ग्लूकोज जिसमें कि राइट हैंड साइड में OH है ऑन द पेनल्टीमेट कार्बन एटम। यहाँ पे सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, जबकि इसमें कई एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। केमिकली कन्वर्ट ग्रुप्स यूजिंग नॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ये सब ग्रुप्स कन्वर्ट करके कैसे देखे जाते हैं, ये सारा ये केमिस्ट्री के स्कोप का सब्जेक्ट है। सो इस तरह से ये कन्वर्जन हो सकता है। नाउ सो इस स्लाइड का जिस्ट ये है कि दिस ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल is the reference compound for making structures of carbohydrates
and amino acids. Again, same is shown here. D-glyceryl A जो है D-glyceraldehyde है, D-alanine है, L-glyceraldehyde है, L-serine है, L-alanine and D-alanine. तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिव अकाउंट उनका दिया गया है. नाउ प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसका अभी तक हम कह रहे थे कि पोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट और उसका रोटेशन क्या है, ये इन फिगर्स से डिपिक्टेड है. ये फिगर्स इंटरनेट से ली गई है एंड फॉर द सेक ऑफ टीचिंग ओनली. ये मैंने नहीं बनाई है, दिस इज टेकन फ्रॉम सम साइट्स. हमने उनको मेंशन भी किया है, अभी रेफरेंसेस देख लेंगे. सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज लाइट एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर एक बल्ब हम जलाएं तो उसकी लाइट हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, डिस्पर्स्ड रहती है. अगर इस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाइट आगे बढ़ रही, मतलब हम एक डायरेक्शन का कंसिडर करें तो वो अगर आगे बढ़ रही है तो आप देखें कि इसको हम एक स्लिट से, पतली स्लिट से पास करते हैं तो खाली ये रेड वाला कंपोनेंट आगे बढ़ता है. तो दिस इज पोलराइजिंग फिल्टर. फिल्टर भी हो सकता है और यहाँ पे बहुत ही पतली स्लेट, एक बहुत छोटा सा कट लगा हुआ है किसी बोर्ड में या किसी सिस्टम में, जिससे कि सिंगल कंपोनेंट, इसके ये कंपोनेंट लाइट के कहलाते हैं. केवल एक कंपोनेंट आगे बढ़ पा रहा है क्योंकि बाकी सारा ब्लॉक्ड है. तो नाउ दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में अगर हम चाइरल सैंपल रखते हैं, जैसे अमाइनो एसिड का सैंपल है या शुगर्स का सैंपल है जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, देन व्हाट हैपेंस, दिस विल बी शिफ्टेड. तो अगर ये हमारी सिमेट्रिक है, ये प्लेन है, तो इससे ये शिफ्ट हो जाता है. अल्फा इज द एंगल, इतना रोटेट हो गया, रोटेटेड लाइट है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये है. वन enantiomer is rotating clockwise, other is rotating anti-clockwise. So एक ही लाइट को एक enantiomer जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा नेगेटिव में रोटेट करता है. इन दोनों को मिक्स कर दे तो अगेन रोटेशन 0 हो जाता है. सो एक और टर्म आ गया फिर, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है. The angle of rotation of plane polarized light by 1 gram per centimeter cube sample in 1 decimeter tube, which is depicted by specific rotation. यहाँ पे एक लाइट के बारे में बताया जाएगा कि किस कलर की लाइट है, उसका लेमडा कितना है, और दिस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑल्सो. सो उन दोनों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है और ये रिलेशनशिप हो जाती है. स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज लेंथ of the part, and d is the concentration of this sample. इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पता चल जाता है. एंड द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन आर डिग्रीज dm-1 cm³ g-1. ये डिग्रीज, ये स्पेसिफिक रोटेशन है. नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स में खाली डिग्रीज के टर्म्स में दिखा देते हैं, बट द यूनिट इज दिस. सो स्पेसिफिक रोटेशन का कंसेप्ट इसमें आता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे एनेंशियोमर्स जो हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं. नाउ इसलिए अब इस पे फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं. अब न्यूमेरिकल्स में हमें अगेन न्यूमेरिकल्स में क्या नहीं मालूम है वो देख लेते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ वन नोन अमाइनो एसिड is this rotates plane of polarized light by -2.12
degrees in a 1 dm cell. What is the specific rotation? I must inform you that ये specific rotation या rotation को देखने के लिए instrument used is polarimeter. Polarimeter में solution होता है एक लंबी सी ट्यूब में, जिसकी की लेंथ अभी हम देख चुके हैं, 1 dm सेल है, तो उसमें सोल्यूशन हम अपने कंसंट्रेशन का रख देते हैं और फिर उससे लाइट पास करते हैं, जो कि फिल्टर के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करती है. जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोल्यूशन से पास होकर दूसरे एंड पे निकलती है तो वो रोटेटेड रहती है, जिसका कि एंगल मेजर कर लिया जाता है. तो दैट इज पोलैरिमीटर. तो पोलैरिमीटर से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने पे दिस क्वेश्चन आस्क्ड specific rotation of the unknown solution and suggest an identity for the amino acid. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स -7.49 degrees per ml dmg, and this value when compared with the table of specific amino acids suggests that it is probably serine. तो अब सारे अमीनो एसिड्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म में. उनका रोटेशन पता है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करते हैं. उनका स्पेसिफिक रोटेशन भी पता है कि एक टिपिकल कंसंट्रेशन पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और गिवन लाइट पे वो किस तरह से बिहेव करता है. अगर उस लिस्ट को हम लेनिंजर में देख सकते हैं, और डिफरेंट बुक्स मस्ट बी हैविंग दिस टेबल, और वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि अगर इतना रोटेशन हमें मिल रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन मिल रहा है, तो वो अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड है. देन नाउ a sample containing single enantiomer है of an optically active compound. ऐसे compounds enantiomers जो है optically active कहलाते हैं, क्योंकि plane of polarized light को वो rotate करते हैं. So when this compound is placed in a polarimeter, the observed rotation is this clockwise, यानी कि right side में वो rotate कर रहे हैं. Then the sample was made by dissolving this much of gram of compound in a solution with total volume of this. The light source was a sodium D light. Temperature was 25. The length of tube was this much. तो इससे सॉल्व करके स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पता करना है, which comes to be this. Note that we usually report this number in degrees, although the actual units are ये हैं. इस टर्म्स में हमें एक्चुअल आंसर रिपोर्ट करना चाहिए. Now, if the specific rotation of plus enantiomer is 100, then the observed rotation of following sample are ये यहाँ पे अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं. Assume the sample tube has length of 1 dm and concentration of each sample is 1. तो जो हमें फॉर्मूले में ज़्यादातर चीज़ें 1 है. Now अगर एक एनेंशियोमर 100 डिग्रीज का रोटेशन दिखाता है, तो दूसरा एनेंशियोमर कितना दिखाएगा. दिस इज वन प्योर एनेंशियोमर, उसका 100% रोटेशन होगा. सिंगल की बात हो रही है, प्योर निगेटिव भी 100 दिखाएगा. रेसिमिक मिक्सचर, इन दोनों के इक्विमोलर रेशियो में अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 50% एनेंशियोमर. तो दोनों अगर मिलाए गए, ये 50% मिलाए गए, ये 50% मिलाया गया, तो यानी कि एक ने कुछ क्लॉकवाइज किया, उतना ही दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो नेट रोटेशन इज 0. सो ऑब्जर्व रोटेशन विल बी 0%. अब अगर एक एनेंशियोमर 75% है और दूसरा जो है वो 25 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा है. तो पहले तो इसमें से 25% माइनस हो जाएगा, जो कि उसका असर माइनस कर देगा. मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये उतना ही एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 25% तो 75 का 25% तो कैंसिल हो जाएगा. बचेगा कितना प्लस में, यानी क्लॉकवाइज 50% रोटेशन फिर भी दिखेगा.
अगर दोनों एनेंशियोमर्स आपस में मिलाए गए और उनका इफेक्टिव अलग अलग रोटेशन अलग अलग डायरेक्शन में कितना है। 20% है, 80% है, ये 80% वाला ज़्यादा बचेगा, 60% माइनस में बचेगा। फिर और भी क्या पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल्स में? कंसेप्ट ऑफ एनेंशियोमर एक्सेस tells how much an excess of an enantiomer is in the mixture and it can be calculated. अभी हमने देखा था इसका कैलकुलेशन। दिस इज वेरी सिंपल। आपको अगर ये दोनों चीजें मालूम है तो रोटेशन 0 होगा, अगर यहाँ पे फर्क है तो डिफरेंस के बराबर होगा। ये पता होते हुए भी इसको फॉर्मूले से भी हम पता कर सकते हैं, विच इज ऑब्जर्व रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर। ये देखिए, टू कैलकुलेट ई वैल्यू इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड द साइन ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल। ऊपर भी वही साइन है, नीचे भी साइन यूज करने हैं, लेकिन साइन इफेक्टिव साइन वो होगा जो ज्यादा होगा। सो एज लॉन्ग एज कीप इन माइंड दैट द साइन प्लस और माइनस ऑफ द ऑब्जर्व रोटेशन इंडिकेट्स दैट विच एनेंशियोमर इज इन एक्सेस। तो जो एनेंशियोमर एक्सेस में है उसका हमें साइन लगाना है। यहाँ पे हम फॉर्मूले में नहीं भी लगाएं तो वी कैन कैलकुलेट the difference और net rotation। ये यही बात यहाँ पे दिखाई गई है कि एक एनेंशियोमर -25% रोटेशन करता है, लीवो रोटेटरी है, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 75% करता है। तो जब इन दोनों को इक्विमोलर रेशियो में हम मिलाते हैं तो इसमें से 25% इसका कैंसिल हो जाता है, 25% ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, नेट जो बनता है वो +50% बनता है। तो इफेक्टिव रोटेशन हम दिखा सकते हैं और एनेंशियोमर एक्सेस दिखा सकते हैं और स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और फॉर्मूले में इनमें से जो भी मिसिंग हो, हमें सैंपल में हमें जो भी क्वेश्चन में जो भी दिया हो, जो भी फॉर्मूलेज हैं उनमें से जो मिसिंग है उसको हम देख सकते हैं। ये अगेन सेम चीज है, यहाँ पे -45% प्लस 27% है, this is 72%, this is 55% divided by 2, 27%। तो 45% means the cancelled amount। अब उसको परसेंट में दिखाया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के ये आपको दिखा रहे हैं कि कितना कैंसिल हो गया और कितना फाइनली ऑब्जर्व होगा। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ें तो इस तरह से आप डिपिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वेट, सॉरी, इसमें रेफरेंसेस दिखाए गए हैं, ये ओवरलैपिंग हो गई है थोड़ी सी। Now it is you can see it fully. Sorry, see again, the enantiomer of a compound has specific rotation 20d of 100%. For a sample 1 gram per ml 1 dm cell, that is the mixture of plus and minus enantiomers, the observed rotation is alpha -45 degrees. What is the percentage of enantiomer present in this sample? Solution क्या? Observed rotation is in x dash dash, the enantiomer is in axis। अब इस तरह से निकालना है। We will see two ways of solving such type of questions. Method 1 algebra से दिखा सकते हैं, Method 2 using diagram in blue color, 27% of plus enantiomer finally बचता है। तो अलजेब्रा में x प्लस
एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, दैट इज 100%। उन दोनों को अलग अलग जो भी वैल्यूज हैं उनको लिख दिया 45%। अब इसमें से इसको डिफरेंस जो बचता है दैट इज y। सो अलजेब्रा यूज करके भी कर सकते हैं, डायग्राम यूज करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना क्या है, जैसे कि फर्स्ट टेबल में दिखाया था। ये सारे रेफरेंसेस हैं जिनमें से मैंने इन सबको आपके लिए निकाला है। ओके, this is the end of my lecture. If you like my lecture and it is helpful to you, please like it, subscribe it and share it. Thank you.